Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019 and also got selected in ONGC 2019. So this video I have prepared on a topic why we get demotivated. Many students have asked me, sir, हम कैसे prepare करें and what you have done during your studies, during your preparation. So let me tell you something about myself, but before that, if you want to ask some questions you can ask here. IAS Chandan Sharma 1. So this is my personal uh, channel and this is Mac Target IAS. These both are on this Telegram. Okay, so please try to join this and you can ask questions on technical questions and also general stuff. So let me first tell you something about myself. Okay, so I have cleared my BTech और completed my BTech in 2015. 2015 में मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए थे लाइक गेट. ओके, आई गॉट अराउंड 8000 रैंक. ओके, 2016 I have given engineering services. I had given engineering services, but I was not able to qualify the pre. 2017 I have not given. I hadn't given any exam. In 2018 EAC I have prepared for 1 year in made easy, but not able to clear EAC pre. Okay, in gate I got 609 or around 610 rank. Okay, so around 600, or you can say in my I am not able recall this. So rank my rank was in between 600 and 620, but मैं इसके थ्रू कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ था. सो ये रैंक के थ्रू मैं एम टेक कर सकता था बिकॉज ऑलरेडी आई हैव माई एज इज़ अबव 25. सो मैं इस आई ओ सी एल एंड एच पी सी एल में एंड बी पी सी एल, सॉरी आई एच पी सी एल एंड बी पी सी एल नहीं जा पाया. इन 29 here also I have not able to clear ISRO. Then I have cleared BRC written but not able to clear the interview. Okay, then I got selected in SSC JEE pre, but मैं मेंस नहीं दे पाया था बिकॉज ऑन दैट डे आई हैड माई सिस्टर मैरिज. सो ये हो गया मेरा फेलियर. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनली आफ्टर 2017, यू कैन से मे 2017, आई हैव प्रिपेयर्ड और आई वॉज प्रिपेयरिंग वेरी होलिस्टिकली. ओके, सो मैं बिल्कुल बस लगा हुआ था. आई नो दैट अपना टाइम आएगा वाला सीन था. बिकॉज आप जब तक मेहनत करते रहते हैं सो मेहनत कभी ना कभी रंग हमेशा दिखाएगी, कभी ना कभी दिखाएगी. ओके, राइट नाउ यू आर स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग. यू मे लाइक बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर वो चीज़ कभी ना कभी काम आती है. ओके, so similarly I was waiting for my moment. So that comes in 2019. I was able to perform well in pre because of my regular preparation. Then cleared mains, got maximum marks in mains and got AIR rank 3. Okay, in gate I got 255 rank which is a decent rank. SSC JEE अगेन मैंने प्री क्लियर किया बट मेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके पहले रिजल्ट आ गया. देन आई हैव ऑल्सो क्लियर बेल. ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उसमें भी सेलेक्ट हो गया था. ओके, सो ये कुछ था. एंड इसके अलावा जो एक और था, आई हैव नॉट एबल टू रिमेंबर दैट पी एस सी ने. सो वो भी मैंने क्लियर किया था, उसका खुद का एग्ज़ाम होता है. ओके, सो ये सब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए 2019 में, बट आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2017. सो नियरली 2 years. इट टुक मी 2 years. For some people it may be 1 year, maybe 2 year or 3 years. It depends upon how you study. थोड़ा सा लक आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. एंड आइदर यू आर डूइंग हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. नाउ अगेन, now I am going to answer why we get demotivated. Okay, so this is very important in your life also. According to me, this is my experience, और काफ़ी छोटा एक्सपीरियंस है, बट आई कैन टेल यू दैट आई बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू very much failures. Okay, so the first one is uncertainty, or uncertainty of your future. Present, many of
us are also uncertain about present, like we are studying but we don't know why we are studying और कब तक पढ़ना है, what is the end. Okay, so we are uncertain about that. We are uncertain about our job, family. ओके, सो काफ़ी लोगों को फैमिली सपोर्ट है, काफ़ी लोगों को नहीं है, काफ़ी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, काफ़ी लोग हायर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ भी आ जाती हैं. ओके, देन मैनी ऑफ अस हैव नेवर टेस्ट द सक्सेस. सक्सेस क्या है किसी की लाइफ में? लाइक आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द IIT एग्ज़ाम. नाउ AIEEE में भी मेरी रैंक अराउंड 20,000 आई थी, बट दिस इज़ अ डिसेंट रैंक मेरे टाइम का, जो 2010 और 11 में जिन्होंने दिया था AIEEE. सो बट ये कोई सक्सेस नहीं है, बिकॉज आई वॉज एमिंग फॉर द IIT. आई गॉट इन टू अ नाइस कॉलेज बट नॉट IIT, सो दैट इज़ नॉट अ सक्सेस एज पर मी. सो ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्होंने सक्सेस टेस्ट नहीं किया है, सक्सेस. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. सो आवर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी लो. ओके, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है तो बहुत ख़राब हालत हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सचिन कॉन्फिडेंट नहीं है एंड ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन, ओके, बट ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टुडे, सो ही मे गेट आउट ऑन इन बिटवीन 1 to 10 रन. बट इफ़ ही इज़ कॉन्फिडेंट और उसको थोड़ा मेडिकल इशू भी है तो भी वो 100 रन बना लेता है. काफ़ी बार आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बैट से बॉल टच नहीं हो रही होती, फिर वो 100 रन बनाता है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट होता है, वो खींचता है, मैं दम लगाऊंगा, वो वाली बात हो जाती है. ओके, देन अभी जो मेन मुद्दा है जो स्टूडेंट्स के लिए है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स, बट अभी जो मेन मुद्दा है वो है लॉकडाउन. ओके, नाउ डिक्रीजिंग सीट्स इन PSUs एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट. बिकॉज ऑफ दीज टू, काफ़ी लोग जो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं वो लोग सोचते हैं कि हम तैयारी क्यों करें. बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. काफ़ी लोग जिन्होंने 12th में 60% लेके आए हैं, ओके, आफ्टर दैट ग्रेजुएशन में अराउंड फर्स्ट डिग्री से जस्ट 60% to 65% पास होते हैं, बट दे आर एबल टू क्लियर UPSC. इन UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, IFS, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपके मार्क्स नहीं मांगते. गेट में फिर भी आपको 65% चाहिए होता है ग्रेजुएशन, बट इनमें अगर आप 40% भी पास आउट हुए तो नहीं हो, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. सो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पहले एक तरीके से एक फेलियर थे बट बाद में मेहनत करके वो क्लियर हुए हैं. नाउ इफ़ ये हो गया पहली चीज़ कि हम मिडल परफॉर्मर हैं, हम काफ़ी लोअर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करें. सेकंड, सीट्स डिक्रीज हो रही है, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट सीट इज़ डिक्रीजिंग. इन 2001 ऑल्सो सीट दैट सिविल सर्विसेज सीट गोट डिक्रीज बाय अराउंड 1/3. ओके, आप चेक कर सकते हैं. नाउ जब भी रिसेशन आता है 2008 में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हुई थी. नाउ ये जो है ये अराउंड मेरे ख्याल से 2020 में सीट से डिक्रीज़ हुई हैं, बट 2021 में सीटें उतनी ही आ जाएंगी, बिकॉज PSU हैव टू वर्क, राइट. वो कॉस्ट कटिंग करेंगे भी तो भी वो कितना कॉस्ट कटिंग करेंगे, उनके पास मैन पावर होना चाहिए. पीपल्स आर रिटायरिंग, गेट रिटायरमेंट. सो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 2021 एंड 2022 यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ सीट इन all these PSU and civil government services. Okay, now this is what we have to do in the lockdown. Like ये जो लॉकडाउन है कुछ लोगों के लिए बहुत सही है, जैसे फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टिल कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन, और जो जिनका फर्स्ट ईयर हुआ है, ओके, फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन में है, ये ज़्यादा दिक्कत उनको देगा जो सेकेंड और थर्ड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है. बट ये जो दो लोग हैं स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है. सो ये हो गया कि वाई वी गेट डीमोटिवेटेड, इसलिए काफ़ी लोग ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं. ओके, सो अगर मैं आपकी जगह पे होता, व्हाट आई शुड डू, लाइक जब मैं 2018 में प्रिपरेशन कर रहा था एंड आफ्टर दैट आई गॉट फेल्ड. ओके, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द EAC प्री, आई गॉट फेल्ड. सो आई हैव एनालाइज व्हाट आई हैव डन रॉन्ग. इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देन हॉलिस्टिक अप्रोच. राइट नाउ लॉकडाउन है, बट दोज हु आर वेरी मच सीरियस वो तो पढ़ ही रहे होंगे, पर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. सो आपको शिद्दत से, होता है ना कि वो
अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो कायनात भी उसको मिलाने की साजिश करती है, वो वाली बात आ जाती है कि आर यू एबल टू डू दैट, आर यू एबल टू सेक्रीफाइस योर कंफर्ट। आप घर पे हैं बट यू आर नॉट एबल टू टॉक टू योर मदर, आप क्या उस सिचुएशन तक जा सकते हैं? ओके, सो दैट इज नोन एज होलिस्टिक अप्रोच। ओके, होलिस्टिक अप्रोच। थर्ड वन इज strategy. Someone is analyzing everything, someone is doing holistic study like 12 to 13 hours daily, but if he has not planned, if he has not able to make a strategy, तो वो सब बेकार है, remember that. Okay, so are you able to make a strategy? Okay, and after that are you able to test yourself? सो ये चार चीज़ें आपको करती रहनी है। ओके, सो मैंने एक फंडा अपनाया था, लाइक आई ऑलवेज टॉक टू मी, लाइक ओके, मेरे जब मी टाइम होता था मैं आई यूज टू रन, एंड ड्यूरिंग रनिंग आई हैव दिस हैबिट लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ इन माई माइंड। ओके, सो आई ऑलवेज सेड दैट कि कोई बात नहीं, 2018 और 2019 इज़ नॉट योर, सॉरी 2018 इज़ नॉट योर बट 2019 विल बी योर्स। और वो मैंने अपने आप को इतनी बार कहा होगा, इतनी बार कहा होगा दैट आई बूस्ट माई सेल्फ विद दैट। और वो जो पॉजिटिव थिंकिंग आती थी ना, पॉजिटिव थिंकिंग, वो मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद करती थी। ओके, सो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये आप ये सब कुछ कर लें बट योर माइंड इज़ फुल ऑफ नेगेटिव थाट्स, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे फर्स्ट आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रखना है। जस्ट लाइक माई फैमिली, व्हेन आई टॉक टू देम, मतलब मुझे पॉजिटिव वाइब्स आते थे, दे सपोर्ट मी, वो बोलते थे कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा। और रिमेंबर वन थिंग, दिस इज इफ़ यू बिकम एन इंजीनियरिंग सर्विसेज और IAS, IAS, IPS, इट डजेंट मीन दैट यू अचीव एवरीथिंग। इफ़ यू सी ना कि जो लोग IAS बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने IAS की प्रिपरेशन की है बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द IAS, दे बिकम टीचर। ओके, now they are producing every year around hundreds IAS IPS. ओके, सो ये जो टीचर है अगर आप देखें तो ये टीचर इन IAS IPS के ऊपर है, राइट? ये काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सो इट डजेंट मीन दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर वन एग्ज़ाम तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। नो, अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो या योर फ्यूचर बिकम सर्टन, थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको मिल जाती है, पर वो भी रिस्पेक्ट थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए थी। जैसे मेरा जब हुआ था तो सब लोग बोलते थे अरे चंदन IAS बन गया, IAS बन गया, IAS बन गया। ओके, बट आफ्टर सर्टन टाइम वो यूज टू हो जाते हैं। ओके, सो गालियाँ आपको घर में फिर भी पढ़नी है अपनी मम्मी से, चाहे आप IAS बन जाए, IPS बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, आपकी मम्मा आपको 100% गालियाँ देंगी। ओके, सो ये इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज नॉट अ लाइफ, दिस एग्जाम इज नॉट अ लाइफ। ओके, और अगर ये नहीं हुआ तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ये चीज़ें माइंड में रखकर जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स कब आएंगी? व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। इफ़ यू क्लियर दिस एग्जाम यू विल गेट अ जॉब। ओके, यू विल अचीव समथिंग। इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम यू विल गेट अनदर जॉब, यू विल अचीव मैनी थिंग इन लाइफ, राइट? सिंपल सी बात है, अगर ये जॉब नहीं करेंगे तो दूसरी जॉब तो करेंगे और उस जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो जब ये वाइब्स आपके दिमाग में रहेंगी तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो ये वाली चीज़ें हैं जो थॉट्स हैं, प्लीज़ अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखिए। ओके, सो मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलना चाहूँगा, लाइक आप अपना प्रिपरेशन जो है प्लीज़ कंटिन्यू रखें। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज़ स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और टू ओपन द you are thinking that when the lockdown will when the COVID-19 ख़त्म हो जाएगा so we will join some coaching classes. No, do not wait for that. right now online coaching classes बहुत हैं। टारगेट IAS जो है ये आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सो ये चीज़ें आप कंटिन्यू रखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस टाइम, कोई और प्रिपेयर कर रहा है एंड ही इज़ योर कॉम्पिटिशन। अगर यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम्स हैं, ये एग्ज़ाम्स एक तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इफ आउट ऑफ 100 यू गेट 33 मार्क्स यू गेट पास। नो, यू गेट 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड स्टिल यू कैन अचीव रैंक 1 अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। आप
से जो आपके साथ जिन्होंने एग्जाम दिया उनके 20 से नीचे है तो आपकी रैंक 1 है, सिंपल सी बात है। ओके, अगर आपके 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड स्टिल 100 सीट्स है और आपसे 200 लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं, यू आर सो यू मतलब एक तरीके से आप फेल हैं उस एग्ज़ाम में, राइट। सो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, जब तक ये तीन चीज़ नहीं है ना, ये तीन चीज़ नहीं है, इसमें से एक भी चीज़ गायब है तो आप कोई एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं बट वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ उतना मायने नहीं रखती है। ओके, सो हार्डवर्क, ऑफ कोर्स यू आर डूइंग हार्डवर्क, बट प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, एंड पेशेंस, पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। ओके, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो एक स्ट्रेटजीज होती हैं, चाहे वॉर्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, लाइक धोनी, धोनी को मिस्टर कूल क्यों कहते हैं? बिकॉज ही हैज़ पेशेंस। ओके, वो लास्ट के 40 ओवर ऐसा रहता है कि इंडिया हार रही है बट लास्ट के 10 ओवर्स में इतना ज़्यादा बूस्ट मतलब मारने लगता है कि इंडिया जीत जाती है, राइट। बिकॉज उसको पता है कि मेरा टाइम आएगा एंड ही हैज़ हिज पेशेंट। तो एक ही चीज़ बोले रहूँगा, लगे रहो भाई, ठीक है। अगर लगे रहोगे, ठीक है, लगे रहोगे इस रास्ते पर तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम 100 एंड मतलब 100 क्या बिल्कुल क्लियर ही होगा। ओके, सो इस पर एक चीज़ और है, लाइक मैं जो समझता हूँ कि आप या तो कर्ण बन सकते हैं या अर्जुन बन सकते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन कर्ण एंड अर्जुन, बोथ आर ग्रेटेस्ट आर्चर उस टाइम के, बट अर्जुन हैज़ अ टीचर, राइट, कृष्ण भगवान, राइट। कर्ण के पास कोई टीचर नहीं थे, इन्होंने इधर उधर से परशुराम जी से विद्या ली, इधर से विद्या ली, उधर से विद्या ली, श्राप लिया, सब कुछ, एवरीथिंग, बट टीचर इन द सेंस नॉट फॉर जस्ट फॉर आर्चरी। कृष्णा अर्जुन के फ्रेंड भी थे, उनको गाइड करते रहते थे, महाभारत में गीता पाठ दिया, सब कुछ, एवरीथिंग, राइट। बट कर्ण के पास वैसा कुछ नहीं था। कर्ण इज सराउंडेड बाय शकुनी, शकुनी मामा, दुर्योधन, राइट, दुशासन, नेगेटिव थॉट्स। ओके, बट स्टिल जो इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स थी वो इसको बेस्ट आर्चर बनाती है, कर्ण को बेस्ट आर्चर बनाती हैं। सो बट अर्जुन इज सराउंडेड विथ कृष्णा, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सो ये पॉजिटिव वाइब्स हैं, राइट। तो यहाँ पर इनको द्रोण, गुरु द्रोण लव्स हिम, ये पॉजिटिव वाइब्स से सराउंडेड है। सो यस, ऑफ कोर्स अर्जुन इज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट आर्चर, बट ये इनके साथ सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, राइट। सो ये एक तरीके से उसके लिए इनको हेल्पफुल है, फेवरेबल कंडीशन है। बट कर्णा के केस में ही इज अ सूत पुत्रा। ओके, एवरीवन कंसिडर इन सूत पुत्रा, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बुरा हुआ है काफ़ी टाइम। ओके, शकुनी उनको बुरा वाला कहते थे, दुर्योधन जस्ट टेक हिम एज ए एडवांटेज। ओके, बट कर्णा डिवोटेड हिमसेल्फ टू एवरीथिंग, टू हिज फ्रेंडशिप, टू हिज आर्चरी। सो आप कर्ण बन सकते हैं, अर्जुन बन सकते हैं। राइट नाउ यू आर कर्ण, इन द कंडीशन ऑफ कर्ण। अगर आप अर्जुन बनना चाहेंगे सो यू नीड अ टीचर हु गाइड यू इन एवरी वे, बट आपको कर्ण, आप हैं कर्ण के कंडीशन में बट बनना चाहते हैं अर्जुन, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर खाना चावल है तो चावल ही बनाना पड़ेगा, राइट। सो कर्ण बनने के लिए आपको खुद पे विश्वास रखना है। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फॉरमोस्ट थिंग। जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना तो भाई वो चीज़ नहीं होती है पॉसिबल, राइट। सो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखिए एंड लगे रहिए। ये हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंट, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की। सो विद दिस मैं आपको बस बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। एंड प्लीज़ जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं करते रहिए, यू हैव टाइम, एंड प्लीज़ डू नॉट स्टॉप, बिकॉज अगर आप रुक जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा रुक रहा है। ओके, सो बस लगे रहिए। इसी के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ।